Hello, myself Baldevram Mali, lecturer Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Topic of my e-lecture is classification of instructions in 8085 microprocessor. Subject code CS208. In 8085 microprocessor, instructions are classified in following 5 functional categories: data transfer instructions, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions, machine control instructions. सबसे पहले हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे. All data transfer instructions copy data from source into destination without modifying contents of source. सभी डेटा ट्रांसफ़र जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी करते हैं और इसमें डेटा एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं होता है, सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी किया जाता है जिससे सोर्स के कंटेंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है. लेकिन जो डेस्टिनेशन के जो प्रीवियस कंटेंट्स हैं वो सोर्स के कंटेंट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं. सभी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन किसी भी फ्लैग को मॉडिफाई नहीं करते हैं. 8085 माइक्रो प्रोसेसर के वेरियस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को फॉलोइंग टेबल्स के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन इज मूव. Copy contents of source into destination. Then immediate move copies 8-bit data in second byte of instruction into specified register. Load register pair immediate load 16-bit data or address in second and third byte of instruction into specified register pair any of the BC, D, HL or stack pointer register. LDA load accumulator direct. Load accumulator directly from memory location specified by 16-bit address in second and third byte of instructions. Load accumulator indirect. Load accumulator indirect from memory location specified by contents of register pair BC or DA. Then next STA store accumulator direct. Store accumulator direct into memory location specified by 16-bit address in second and third byte of instruction. Next instruction SHLD store HL pair direct. Copies contents of register L into memory location specified by the address given in the instruction and contents of H into next memory location. XCHG exchange register pair HL with register pair DE. SPHL copies contents of register pair HL into stack pointer register SP. PCHL copies contents of register pair HL into program counter PC. Push store register pair or stack or program status word on stack. Program status word consists of accumulator and flag registers. Pop of stack into register pair or program status word.
XTHL, exchange register pair HL with top of the stack. Okay, now we discuss arithmetic instructions in Today we 80. consider the arithmetic instructions in 8085 microprocessor. The 8085 microprocessor performs four arithmetic operations: addition, subtraction, increment and decrement. Addition and subtraction operation have following properties. First, first operand is always accumulator. Result of these always stored in accumulator. Increment, INR and decrement DCR instruction have following property. These instructions modify the contents of. Okay, now we discuss logical instructions in 8085 microprocessor. 8085 microprocessor में बेसिक लॉजिकल instructions and or exclusive or not. Logical and logical or operation have the following properties. First operand is always accumulator. Result of these is always stored in accumulator. Logical AND operation always reset carry flag and set auxiliary carry flag. Remaining flags sign 0 and parity are modified according to result. Logical OR operation always reset both carry and auxiliary carry flag. Remaining flag sign 0 parity are modified according to result. Contents of second operand are not modified. Okay, now we discuss branching instruction in 8085 microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर एक सीक्वेंशियल मशीन है और ये इंस्ट्रक्शंस को सीरियल मैनर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और इस तरह से लास्ट इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूशन चलता रहता है। बट सम केसेस के अंदर जो हैं वो एग्जीक्यूशन के सीक्वेंशियल ऑर्डर को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को सीरियल या सीक्वेंशियली रखें तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूशन के सीक्वेंशियल ऑर्डर को चेंज करना आवश्यक हो जाता है। और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के सीक्वेंशियल ऑर्डर को चेंज करने के लिए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है। 8085 में ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं: जंप इंस्ट्रक्शंस, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस एंड रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस। जंप इंस्ट्रक्शंस के द्वारा प्रोग्राम कंट्रोल एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पर जंप होता है। इसमें 2 टाइप के जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं: अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन JMP और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में जंप होने से पहले रेस्पेक्टिव फ्लैग्स को चेक किया जाता है और फ्लैग के अकॉर्डिंग जंप किया जाता है या नहीं किया जाता है। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल JC, जंप ऑन कैरी।
इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा जंप केवल तभी किया जाता है जब कैरी फ्लैग सेट हो। इस तरह से और भी जो है टोटल 7 कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। JC, JNC, JZ, JNZ, JM, JP, then JPE, JPO, jump on parity even, jump on parity odd। नेक्स्ट टाइप के जंप इंस्ट्रक्शंस हैं कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कॉल, CALL और RET रेट। इन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सबरूटीन्स बना सकते हैं और जिससे जो है बड़े बड़े टास्क को सबरूटीन्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, बड़े बिग साइज़ के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, RST इंस्ट्रक्शंस, ये बेसिकली इंटरप्ट्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करते हैं इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन्स का यूज़ करके। लास्ट टाइप के जो इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे हॉल्ट करना, इंटरप्ट करना, डू नथिंग। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किसी भी फ्लैग को मॉडिफाई नहीं करते हैं और कोई डेटा को भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के वेरियस मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है NOP, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फैच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिले सबरूटीन्स के अंदर NOP का यूज़ किया जाता है। HLT, halt। CPU completes current execution of instruction and stop executing further। halt इंस्ट्रक्शन के आने पे जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में फर्दर एग्जीक्यूशंस को स्टॉप कर देता है। DI, डिसेबल इंटरप्ट। ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर देता है, जिससे ट्रैप को छोड़ करके बाकी सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं। EI, एनेबल इंटरप्ट। ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देता है, जिससे सारे इंटरप्ट्स एनेबल हो जाते हैं। RIM, रीड इंटरप्ट मास्क। रीड इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन का यूज़ इंटरप्ट के मास्क स्टेटस, इंटरप्ट RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 के मास्क के स्टेटस को रीड करने और कोई सीरियल बिट आई है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पे तो उसको भी रीड करने के लिए RIM इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है SIM इंस्ट्रक्शन, सेट इंटरप्ट मास्क। सेट इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन का यूज़ RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 इंस्ट्रक्शन के मास्क को सेट रिसेट करने के लिए किया जाता है। साथ में ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सीरियल डेटा को SOD पिन पे लाइन पे सेंड करने का भी काम करता है। ओके, इस तरह से हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशंस को ब्रीफली डिस्कस किया था। इस ई लेक्चर में
एज ए रेफरेंस मैंने बुक यूज़ की है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस विथ 8085 by Ramesh S. Gonkar. Okay, thanks.